English Supplementary, Chapter number 9, the comment, Part 1. Let me explain this chapter in short. This story is about a comet appearing in the sky and heading towards the earth. Scientists and religious leaders have different opinions about it. Dattada is an amateur scientist who lives with his wife Indrana Devi. Even in the moonless night of December, he would go on to have a tete-a-tete with Divya Sakshu. It was nothing but a telescope. He had named him so because he was thrilled to see it and wanted to call it the Divine Eye. He spent enough time observing the universe with his good telescope. But Indrana Devi, who was his wife, could find no object in his research, but Dattada carried on his sacred ambition. He thought one day he would discover a comet, as a professional might miss an insignificant thing like this. Quite meticulous in his calculations, Dattada finally came out with the discovery of a comet and informed about it to the Indian Institute of Astrophysics, IIA. Thereafter, this Indian Institute of Astrophysics, IIA, recognized the comet and named it Comet Datta. Okay, give this comet name after the Dattada, who was the scientist. He then received publicity, all of which he didn't like. Even his wife had same thinking, as she'd considered the comet to be a bad omen and harmful, though he assured of no harm, but Dattada was not exactly right. Okay, in the second part of this chapter, John McPherson, the Defense of Science advisor, calls for a confidential meeting with Dr. Forsyth about an impending calamity of Comet Datta colliding with the Earth. They recognize that the effects will be catastrophic, and it was important to find out the solution to the disastrous situation. The entire living species and precisely 10 months of survival. Sir John wanted to immediately hold a meeting for the same and wanted to keep the matter confidential, but James did not submit. Sir John, however, did not agree and decided to restrain and refrain the uses from the medium for a while. They decided to call on for a secret conference. So here the story ends. So in हिंदी, दत्तदा ने एक नए धूमकेतु की खोज की थी. धूमकेतु मतलब कमेंट. इसकी खोज ने समूचे विश्व में आतंक फैला दिया था. यह पृथ्वी के साथ टकरा सकता था और सभी चीजों को नष्ट कर सकता था. खतरे को टालने के लिए वैज्ञानिकों और साधारण व्यक्तियों को भिन्न विचारधारा थी. दिसंबर की एक चांदनी रात में दत्तदा जाग गया. वो शौकिया खगोल शास्त्री था. उसके पास देखने के लिए बहुत छोटी सी दूरबीन थी. वो उसे दिव्या चक्षु कहा करता था. वो छत पर चला गया. उसकी पत्नी इंद्राना देवी उसे दूसरी महिला समझती थी जिसने उसके पति को जाल में फंसा लिया था. उसने दूरबीन का नाम दिव्या रख दिया था.
सेवामुक्त होने पर दत्तदा को दूरबीन खरीदने के लिए काफ़ी धनराशि मिली। सितारों को देखने के लिए उसके पास पर्याप्त समय था। उसे नया धूमकेतु खोजने की आशा थी। धूमकेतु सौरमंडल के सुदूर कोनों से आता है। ये सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य के प्रकाश से चमकता है, फिर लंबी अवधि तक यह अंधकार में विलुप्त हो जाता है। हेली ने 1910 में एक धूमकेतु की खोज की थी। यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद सूर्य के समीप आ जाता है। अपनी 8 इंच की दूरबीन से दत्तदा भी दत्ता धूमकेतु की खोज करना चाहता था। केवल शौकिया वैज्ञानिक की धूमकेतुओं की खोज करते हैं, व्यावसायिक व्यक्ति नहीं। उन्हीं पुराने सितारों के बीच दत्तदा ने एक धुंधला सा अजनबी देखा। वो नए धूमकेतु जैसा लगता था। उसने काफी देर रात तक आकाश को निहारा। 2 दिन बाद नए धूमकेतु की उसकी खोज की खबर आनंद बाजार पत्रिका में छप गई। उसका समाचार भारतीय नक्षत्र भौतिकी संस्थान बंगलोर को भेज दिया गया। उसकी खोजों की सत्यता का पता लगाया गया। उसकी 1 सप्ताह में पुष्टि हो गई। नए धूमकेतु का नाम दत्तदा धूमकेतु पड़ा। अपने सम्मान में आयोजित उत्सवों में दत्तदा उपस्थित हुआ। उसकी पत्नी को वह था कि धूमकेतु दुर्भाग्य तथा पृथ्वी पर सर्वनाश लाते हैं। उसने टिप्पणी की कि उसकी दिली इच्छा है कि उसके पति धूमकेतु की खोज नहीं करते। सर जॉन मैकरसन सरकार के सुरक्षा विज्ञान सलाहकार थे। उन्होंने जेम्स फोर्सिथ को तुरंत लंदन बुलाया। जेम्स ने नेचर नामक एक पत्रिका में छपने के लिए अपना पेपर भेज दिया था। जेम्स को आश्चर्य था कि वो जॉन के हाथों में कैसे पहुंच गया। जॉन ने सोचा कि उसे किसी भी हालत में नहीं छपना चाहिए। वो नेचर के संपादक से मिला था। उसकी खोज की यथार्थता में उसे कोई संशय नहीं था। आतंक से बचने के लिए उसने लेख को हल्का करने के लिए कहा। जेम्स ने भविष्यवाणी की थी कि दत्तदा धूमकेतु पृथ्वी से टकरा सकता था। विरल परिस्थितियों को छोड़कर टकराव निश्चित था। विनाश को रोका जा सकता था यदि धूमकेतु किसी दूसरे ग्रह से टकरा जाए या सूर्य के पास आकर वो टूट जाए या गायब हो जाए। फिर भी ये विरल परिस्थितियां थी, इसलिए 10 महीनों के भीतर टकराव निश्चित था। सर जॉन ने पूछा कि वो कैसे किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया कि विश्व भर में निपुण व्यक्तियों की बैठक बुलाई जाए। केवल वही किसी समन उपाय का सुझाव दे सकते हैं। जॉन ने 1 सप्ताह के बाद समय के भीतर ही इस प्रकार के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर दिया। उसने इसका ब्यौरा भी तैयार कर दिया।